So, good evening, dear friends. From today onwards, we'll start a revision for this economics section book, that is development. Okay, so we'll start with the agriculture because some students they were having doubts regarding agriculture. So we'll start from that agriculture part. I think this is the third chapter from VK. So let us revise what was the status of agriculture after independence and what steps were taken by the government, okay, to improve agriculture. ठीक है ना. तो at the time of independence की बात करते हैं. Surplus, you know very well, the agriculture, it was 90% of the people, 80 to 90% of the people were engaged in agriculture. And at the time of independence, surplus labor was there, extra labor was there, isn't it? And extremely low productivity. 90%, 80% of the population engaged in agriculture, still the productivity, it was very, very low. And land tenure system, it was very, very defective. ठीक है. uh, all the what we say backward methods were used for the farming, isn't it? I hope you are able to understand what I'm saying. So let us talk about now the policies and measure to solve agricultural problem. Three categories were there. Uh, what government tried to do, okay, um, in when it comes to agriculture policies and measures to solve agricultural problem. Three categories were there. Government decided that to tackle this particular problem of agriculture, I think we have to divide. They decided to divide it into three categories. Three dimensional cure should be there for the agriculture, which is in a hopeless state. First, the institutional reforms all over, all institutional reforms. Abolition of intermediaries. This system of intermediaries, it was started by the British, okay, and that is zamindari system. It was abolished by the government. It is really curse for the farmers, okay. They merely collected rent from the actual tillers of soil without any role in improving production. Who are the tenants? Were actually the tillers of soil, whereas these people, that means the zamindars, were just enjoying and basking in the glory of richness and doing nothing at all. So these intermediaries were removed, okay, which these were not having any role in the production activity, okay. So what steps were taken to remove this intermediary? First and the foremost, uh, motives motive was ownership of land. Would give incentives to the tillers to invest in production related activities, okay. Some what we say incentives were given. Now one were given to the farmers, okay. uh, Ownership of land, it was also given to farmers. Got it? So once you give the ownership to the farmers, those were considered as tenant. What? So they would be encouraged to invest in production related activities. उनको थोड़ा पैसा भी दिया गया, land उनके नाम पे की गई, जमींदारों से छीनी गई. It was confiscated from the जमींदार and it was given to them. Okay, so that they can actually invest. That कि अब ज़मीन मेरी है, I will be in a position to invest in a proper manner. उसका result क्या हुआ? 200 lakh tenants came into direct contact with the government. They were freed from zamindari system and the exploitation. They were able to get the what we say claim on land, who are just for 20 25,000 for 20 or 25 years were in a way working under zamindars. In certain areas, zamindari system continued due to muscle power and loopholes in legal system. And as I told you, in certain areas like Bihar, got it, Uttar Pradesh, as well as if you talk about West Bengal, isn't this system continued, okay, and the government was not able to get rid of the zamindari system. Because zamindars, what they did, they were very shrewd. They took advantage of the loopholes in the legal system, okay, and muscle power. जिसको कहते हैं ना लठेत रख रखे थे, and that is the reason why they were not zamindari system stayed in certain pockets. The poorest of the agricultural laborers and sharecroppers did not benefit from this reform. Okay, now those who were in the middle level, those farmers as well as up, actually got benefited, but the poorest of the poor, that means the agricultural laborers and sharecroppers, they were not, they did not benefit from this reforms. Got it? So, like zamindari system, it
You will be surprised to know zamindari system, it was abolished, but still it shamelessly prevailed, and still in India at present, though now zamindari system is what totally abolished, but still in certain pockets of Bihar, Uttar Pradesh, this is prevailing. Not only this zamindari system, but bonded labor is also prevailing. Okay. तो एक दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, लैंड सीलिंग। देखते हैं क्या है लैंड सीलिंग क्या होती है। एंड द अनदर रिमार्केबल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। अब कुछ चीज़ें क्या होती है पेपर पे अच्छी लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हाट इज लैंड सीलिंग? द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एंड बियॉन्ड दैट limit would be confiscated by the government and would be allotted to the poor farmers. This was the thing, land ceiling. You can have a certain amount of land, okay? You just cannot have hundreds and hundreds of acres, okay? If your land which you own goes beyond the limit, it would be confiscated, it would be seized by the government, and it would be allotted to the poor farmer. अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया गांव में जाके, मान लीजिए ये 2 बीघा ज़मीन आपकी, तो क्या वो चैन से रहने देंगे ज़मींदार उनको? नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी। पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर। isn't equity means सबको समान अधिकार मिले, isn't it? That sort of rich and poor, the rift should be removed. अब इसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई। कुछ गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर करती थी, द गवर्नमेंट ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट, बट देन सर्टन लूप होल्स वेर देयर, सर्टन ब्लॉकेजेस वर देयर, बिकॉज ऑफ विच द पॉलिसीज वर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, यही प्रॉब्लम है कि पॉलिसी हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन आवर परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेरी लो। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग हियर? To promote equity in agriculture. ठीक है, बता दिया मैंने। Problems of land sealing: the big zamindars took advantage of loopholes in legal system. They challenged its implementation. Got it? वो इसको द चैलेंज इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ओके, उन्होंने इसको कोर्ट में लगा दिया कि भाई हमारा अधिकार है, ये ज़मीन हमारी है, लाइक दैट। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिया इज नोन फॉर द डिले, द कोर्ट्स आर नोन फॉर डिलेइंग, isn't it? Very quick results are not given, or judgments are not given through courts, okay? And you know very well a saying is that justice delayed is justice denied, okay? The delay in court that gave them time to register property in the name of relatives, okay? वो क्या है कि जैसे ही कानून लागू हुआ कि भाई ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर रहे हैं, वो क्विकली जो डिले होता था जस्टिस में, उसका फ़ायदा उठा के दे वुड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स, ओके? रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर दिया ज़मीन, फिर बाद में उसको वापस ले ली या उन्हीं से ऑपरेट करवा रहे हैं, जैसे कि अभी मोनेटाइजेशन में हुआ था, जैसे सरकार ने घोषणा की थी, सारा का सारा पैसा उन्होंने क्या करा, अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिया था, ठीक है ना? और फिर बाद में कुछ पैसा दे के वापस से अपने उनको उनसे ले लिया। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स इन कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है? तो ये हुआ था, लाखों करोड़ों लोग जो रुपए थे कहते थे कि वो रिलेटिव्स के नाम कर दिए गए, किसी रिलेटिव के खाते में 2 लाख आ गए, 3 लाख आ गए, ऐसा चलता था, पैसा बचाने के लिए। और फिर बाद में उनको कह भी दिया जाता था कि भाई हमारा पैसा तुम्हारे पास है, हम इतना परसेंटेज तुमको देंगे, बाकी हमको लौटा देना, ठीक है? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसका इम्प्लीमेंटेशन 100% फ़ायदा नहीं हुआ। सिमिलरली वन मोर बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म की, ये तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था, ठीक है ना? मैंने बताया 3 डायमेंशनल था। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स की जहाँ बात आती है तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, बट इसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, बट yes, one thing was that it was quite successful, 60 to 70% it was successful, and it was able to remove the scarcity or shortages of food in India, द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन मतलब क्या हुआ? रुकावट, जो एक जगह पानी रुका हुआ था उसको स्टैग्नेशन कहते हैं। द डेडलॉक, ना गाड़ी आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वाज स्नैप्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्ट। तो इसने उस जो डेडलॉक था, जो स्टैग्नेशन था, जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से? ब्रिटिश राज से, इसने उसको तोड़ा, इसको काटा, इसको ब्रेक किया। किसने? ग्रीन रिवॉल्यूशन में। एंड द पायनियर हु स्टार्टेड दिस, who initiated this green revolution, he was Mr. Swaminathan, okay? Yes, Swaminathan was the person who initiated this reform, just like Kurian who initiated the white revolution regarding milk production in Anand.
ही लेड द फाउंडेशन फॉर अमूल. ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू इंक्रीज, सारी डेफिनेशन याद कर लीजिए, मैं वीडियो डालूंगा आपको तो कभी भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज व्हाट समथिंग, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी. हाई यील्डिंग वैरायटी, यहाँ पे वाई गलती से लग गया, इट शुड बी हाई yielding variety, HYV, high yielding variety. So sudden increase in production of the fruit grains due to sophisticated और high yielding variety of seeds. ठीक है, और उसमें genetically engineered seeds भी यूज हुई थी. ठीक है ना, just to enhance the production. ये था green revolution. So it was started in 1966. It was an amalgamation of, amalgamation मतलब mixture. Okay, a mixture of HYY गलती से लिख दिया हर जगह मैंने, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, ये वहाँ Y नहीं है, HYV. ठीक है, ये सब ध्यान रखना. प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. देखो 3 चीज़ों का मिश्रण था ये. क्या चीज़? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वॉज यूज ऑफ सफिस्टिकेटेड सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. इन तीनों का अमेलगमेशन से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था. नाउ अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से आ गई. क्या? कि इंडिया, एज यू नो वेरी वेल, इट इज़ नोन फॉर इट्स regional imbalance. Okay, some states are very very poor, some states are very very you can say rich, and some are somewhere lying in between. Okay, so now when you talk about green revolution, you have to be financially sound. You should have proper irrigation facilities. Otherwise what will happen? The green revolution would be futile. You will not be able to, your efforts would be in vain. You will not be able to get the complete benefit of green revolution. Okay, so green revolution required sound financial resources and superior irrigation facilities which only rich farmers could afford, and that is the reason why green revolution का फायदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे उठाया गया? हरियाणा और पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश के इलाकों में, because they were already well off. They were having financial resources, doesn't it? Sound financial resources they were having, and irrigation, artificial irrigation facilities they were having. Okay, and that is the reason why, and that is the reason why they were able to afford pesticides, good quality fertilizers and HYV seeds. ठीक है, ठीक है ना. So therefore during first phase it was restricted to Punjab, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये सारे इलाके जो आसपास के, पहले पंजाब और हरियाणा तो एक पास पास ही थे, ये सारे साउथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को फ़ायदा हुआ, उधर वेस्टर्न यूपी को फ़ायदा हुआ और पंजाब को फ़ायदा हुआ. ठीक है, फर्स्ट फेज में वहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया. इन द सेकेंड फेज इट कवर्ड अदर स्टेट्स एंड इंक्लूडेड अदर क्रॉप. फिर सेकेंड फेज में बोल रहे, यहाँ लिखा हुआ ज़रूर है कि सेकेंड फेज में दूसरे स्टेट्स का फ़ायदा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया. जो बिल्कुल बैकवर्ड स्टेट थे वो पीछे रह गए. ठीक है ना. सो यू कैन नॉट से दैट इट वाज 100% सक्सेसफुल. दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन got certain loopholes were there, implementation it was not proper, lot of things were there, what we say, coordination it was not proper, lot of things were there. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स अचीव. अब बात करते हैं कि क्या अचीवमेंट्स एक तरह से, तो एक चीज़ तो पक्की थी कि सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बनना. इन द ईयर 1947, जस्ट आफ्टर 1947, although it was an irony, you can say, although we were agrarian economy, but then also we have to import food grains, okay, from western countries, from America. So that was a great irony. But now we became self-reliant or self-sufficient when it comes to what we say, when it comes to food grain, we don't have to import food from other countries. So achievements of green revolution, पहला क्या है? Commercialization of agriculture. Large proportion of production could be sold in market instead of self कंजम्पशन. पहले क्या था कि जो फार्मिंग थी वो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी. तो बेचारा किसान अपने घर के जो 4-5 मेंबर होते उन्हीं के लिए उगा पाता था. गेहूँ उग जाता था, चावल उग जाता था, दाल वाल कहीं से बाजार से ले आता था, थोड़ा बहुत बेच देता था. बट नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर बिकेम कमर्शियल ओरिएंटेड. कमर्शियल हो गए, इजंट इट? अ लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन द फार्मर्स दे वर एबल टू सेल इन मार्केट. ओके, इंस्टेड ऑफ सेल्फ कंजप्शन भी था, बट वो मार्केट में बेच सकते थे. कमर्शियलाइजेशन हुआ फॉर. लेकिन ये भी ध्यान रखिए, कमर्शियलाइजेशन कहाँ हुआ? ओनली इन द रिच स्टेट्स. बी केयरफुल. ओके,
थ्रू हायर आउटपुट ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट इन मार्केट सरप्लस। थ्रू हायर आउट, बहुत पैदावार हो गई, बहुत पैदावार, मतलब इतनी पैदावार हो गई थी कहाँ पे जैसे पंजाब का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, है ना, तो वो डिमांड इट वाज लेस एंड सप्लाई इट बिकेम मोर, सो मार्केट सरप्लस हो गया। पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन मार्केट आफ्टर फुलफिलिंग देयर ओन कंजम्पशन नीड्स। सरकार ने फिर मंडियाँ वगैरह बना दी बहुत सारी, जहाँ पर सरप्लस जो अनाज था वो सरकार खरीद लेती थी और मंडियों में रख देती थी, गॉट इट, और कभी उसको बेच देती थी, गरीबों को दे देती थी थ्रू राशन पीडीएस सिस्टम से, public distribution system से। Market surplus sold in market resulted in decline of the price of food grains, low income group benefited। तो ये एक फायदा हुआ, मार्केट सरप्लस सोल्ड इन मार्केट, जो सरकार उसको मार्केट में भी बेच देती थी, मंडी में बेच देती थी कम कीमत, सोल्ड इन, तो इट रिजल्टेड इन डिक्लाइन। और अब ये एक नेचुरल फिनोमिनन, अब किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, so naturally what will happen, there will be competition among the sellers and the prices of food grains would be down, so it resulted in decline of the price of food grains। मंडियों में भी सस्ता मिलने लग गया अनाज लोगों को। लो इनकम ग्रुप बेनिफिटेड, और जो बेचारे लो इनकम ग्रुप वाले थे वो बेनिफिट इसमें होने लग गए, उनको पीडीएस से भी सरकार ने दिया बहुत कम दामों पे, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल गवर्नमेंट टू बिल्ड अ स्टॉक फॉर फ्यूचर, इस तरह वो बफर स्टॉक भी मेंटेन करने लगे, गवर्नमेंट कई क्राइसिस होती है तो गरीबों को दिया जाएगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और एक और चीज़ हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया, ठीक है। मोर एंड मोर पीपल वेर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज इन ऑल द रिच स्टेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सरप्लस लेबर, जो एक फालतू लेबर था, सरप्लस लेबर जो जबरदस्ती कहीं पे हिडन एम्प्लॉयमेंट के शिकार थे, उनको एक जो सरप्लस लेबर था उसको काम मिला, दे वर एब्जॉर्ब्ड इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई। फर्स्ट स्टेज कैसे, फार्मर्स ऑफ पंजाब आंध्रा बेनिफिटेड, सेकेंड स्टेज फार्मर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स बेनिफिटेड, मतलब फ़ायदा तो हुआ, इतना फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन हुआ ज़रूर। सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन, जो मैंने बता चुका हूँ, नो मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, हम खुद ही इतनी पैदावार कर रहे हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलप, जैसे ही हमने शिफ्ट किया कहाँ पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ, व्हाट हैपेंड, सर्टेन केमिकल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड मशरूमिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल किस चीज़ की, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री बूम्ड, है ना, और यू कैन से पेस्टिसाइड एज वेल एज मशीनरीज, जो पूरा, तो एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो स्टार्टेड फ्लरिशिंग, हजंट इट, पूरा का पूरा फर्टिलाइजर वाला, केमिकल्स वाला, पेस्टिसाइड्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने अचीवमेंट बता दिया, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स भी है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि शॉर्ट कमिंग्स भी आई, कि देखो जो ऑलरेडी थोड़े बहुत रिच थे, दे बिकेम मोर रिचर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, and the states which were already poor, they were thrown in more, what we say, poverty, isn't it? So the gulf between rich states and poor states enlarged, okay, rift it was created, ठीक है ना। So this disparity between rich and poor farmers increased, इनपुट्स वेर कॉस्टली, वेरी नहीं यहाँ पे, वेर, WERE, इनपुट्स वेर कॉस्टली। अब आपको कुछ, अगर उस ज़माने में भी ट्रैक्टर आ गए, बड़े बड़े साइंटिफिक जो है इम्प्लीमेंट्स आ गए, या साइंटिफिक डिवाइसेस बोल दीजिए, हजंट इट, वो सब आ गए, बट ओनली रिच कुड अफोर्ड, अगर आपको बढ़ावा देना है इसका, ठीक है ना। और बेचारे जो गरीब आदमी था, गरीब किसान था, वही बुलक काट लेके खुद ही खेत पर जोतता रहता था, हजंट इट, तो ये प्रॉब्लम थी। अटैक ऑफ पेस्ट मोर इन HYV क्रॉप, एक नुकसान और हुआ था कि देखो उल्टा हो गया, HYV क्रॉप्स जो थी हाई इल्डिंग, जो हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स जो थी या क्रॉप थी, अब यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि पेस्टिसाइड्स भी आ गए थे, तो पेस्टिसाइड जो है छिड़क देते थे, भी फार्मर्स यूज टू स्प्रिंकल, बट देन वन प्रॉब्लम वाज दैट जो देसी सीड्स होती थी उसके मुकाबले, या फिर ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती थे, दे वर प्रोन टू पेस्ट, दे वर प्रोन टू पेस्ट अटैक, और यू कैन से दैट दे वर वल्नरेबल टू पेस्ट, ओके।
poor farmers who somehow managed to get these seeds would jeopardize their crop, wasn't it? Now poor farmers ने कहीं से बेचारे ने जो है लोन लेके सरकार से या फिर क्या बोलते हैं मनी लैंडर से, उसने ये लिया कहीं से जुगाड़ करके, भाई इससे फसल मेरी बहुत अच्छी होगी. नाउ व्हाट हैपेंड, द प्रॉब्लम इज दैट दिस seed would jeopardize means put his crop in danger. Jeopardize का मतलब होता है, jeopardize का मतलब होता है putting in danger. So he would jeopardize his crop. अब वो पेस्टिसाइड भी उसमें छिड़को अच्छी तरह, उसके लिए अलग पैसे लाओ. ओके, सो हाउएवर द रिस्क ऑफ पेस्ट रिड्यूस थ्रू रिसर्च बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट. लेकिन वो क्या हुआ कि फिर उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, उसकी वैरायटी को सुधारी गई, रिसर्च किया सरकार ने और थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया इसमें सीड्स में, तो वो अपने आप ही अंदर से वो अवरोधक शक्ति जिसको कहते हैं दैट वो बढ़ गई क्रॉप की. वो पेस्ट जो है जो पेस्ट उसको अटैक नहीं कर पाते थे. फिर लिमिटेड इफेक्ट ऑन अदर क्रॉप लाइक टी, रबर, जूट. अब सर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो है किसको, ग्रीन रिवॉल्यूशन इट वाज टारगेटिंग ओनली द मेन क्रॉप्स. ठीक है ना, ये जो दूसरी कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, रबर और जूट, इनको छोड़ दिया गया था एक तरह से. असम वगैरह में जो वेस्ट बंगाल में जहाँ पर टी प्लांटेशन वगैरह थे, रबर के, जूट के, इन सबको छोड़ दिया गया था. रीजनल इम्बैलेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवर. और रीजनल इम्बैलेंस बहुत बढ़ गया था जो आज तक एक तरह से जारी है. ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप्स टू काउंटर रीजनल इम्बैलेंस. अब सरकार ने क्या कोशिश करके भैया रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म करना है. लो इंटरेस्ट लोन्स टू पुअर फार्मर्स, भाई कम ब्याज पे फार्मर्स को लोन देना. लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम मैं कई बार बता चुका हूँ कि इफ़ यू आर गिविंग लोन्स टू फार्मर्स देयर इज लॉट ऑफ, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, लॉट ऑफ पेपर वर्क इज देयर, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स आर देयर, रेड टैपिज्म इज देयर, इतना आसानी से पैसा नहीं मिलता. सब्सिडाइज फर्टिलाइजर की कीमत कम कर दी सरकार ने. पेस्ट कंट्रोल बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट, और रिसर्च किया गया कि पेस्ट कंट्रोल को कैसे किया जाए. जो पेस्ट हैं जो इनकी क्रॉप है, इसकी अवरोधक शक्ति बढ़ाई जाए. इम्यून सिस्टम का बड़ा, यू कैन कॉल इसका जो रेजिस्टेंस है किसके खिलाफ, पेस्ट के खिलाफ, वो बढ़ाया जाए. तो रिसर्च होता रहा. Thus the effort made by government reduce the risk of regional imbalance. Reduce लिखा है, हाँ, ख़त्म नहीं किया है, वो अभी भी जारी है एक तरह से. बट हाँ, उसका ये गवर्नमेंट के एफर्ट से कुछ कम ज़रूर हुआ है. अब एक डिबेट बहुत आज तक चल रही है, ये डिबेट ओवर सब्सिडीज, वेदर द डिबेट इज वेदर द सब्सिडीज आर गुड और बैड. Subsidies are given to the farmers. Okay, that means their fertilizer, whatever things are required, whatever inputs are required for agricultural production, they are provided by the government at a subsidized rate, less rate as compared to the market price. अब ये अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, ठीक है ना, ये देखते हैं. फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस, पुअर वल्नरेबल, सब्सिडीज हेल्प इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई जो फार्मिंग इन इंडिया इज अ रिस्की बिजनेस, इट्स लाइक अ गैम्बल. ओके, बिकॉज द फार्मर्स इन इंडिया दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. कभी बारिश हो जाती है, कभी आपका दाव लग गया गैम्बलिंग के जैसा, तो आपके बारे नहीं आ रहे. कभी दाव नहीं लगा तो आप गए काम से. ठीक है ना, तो पुअर वल्नरेबल दे आर ऑलवेज एट रिस्क. तो ये सब्सिडीज उनको हेल्प करती कि भाई कम कीमत पे कुछ चीज़ दे देना, इनपुट्स. फार्मर्स अनेबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. न्यू टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली होती है फार्मर्स के लिए. ठीक है ना, जो अलग अलग आप ट्रैक्टर्स देखते हैं और जो प्लॉगिंग होती है जिससे वो अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है ना, आई होप यू आर एबल. सो ultimate aim of equality will not be violated, income inequality would be reduced. और एक सरकार का ये मंशा थी, it was the plan of the government, or you can say it was like the vision of the government that equity will not be violated. भाई सबको समान अधिकार, जो ये पैसे की जो ऊंच नीच है या the rift between rich and poor, it would be resorted or it would be resolved, or it would be bridged. ठीक है ना, the rift. So ultimate of aim of equity will not be violated, income inequalities would be reduced. ये सरकार की मंशा थी, लेकिन हमें मालूम है ऐसा हो नहीं पाया. ठीक है, अनदर आर्ग्यू, अब ये तो एक ये आर्ग्यूमेंट हो गया. अब इसके अब अगेंस्ट में एक आर्ग्यूमेंट है क्या, once the technology is found profitable and assimilated, then subsidies should be phased out because
द पर्पस हैज़ बीन सॉल्व। कुछ लोग कहते हैं भाई सब्सिडीज़ जो है ना ये अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ पुअर के लिए अच्छी है, बट देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सपोज द पुअर फार्मर्स बिकम वेल ऑफ, ओके, एंड सपोज दे आर एबल टू assimilate, absorb the new technology, then this purpose would be solved, ठीक है ना, then the subsidies should be removed because the purpose is solved। न्यू टेक्नोलॉजी को अगर पुअर फार्मर्स ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब रियल में प्रॉब्लम देखो क्या है, सब्सिडीज दी जाती है हर चीज़ में, फार्मर को सब्सिडीज दी जा रही है, किसको, सभी को दे रही हैं फार्मर। अब सपोज इफ आई एम वेरी वेरी पुअर फार्मर, इफ आई एम अ वेरी पुअर फार्मर, देन व्हाट हैपेंस, गवर्नमेंट इज टेलिंग मी ओके विल गिव यू जो है subsidized fertilizers, subsidized pesticides, got it, subsidized electricity also, got it or not? But the problem is that I am very very poor, even the subsidized rate of fertilizers or what do you say, this type of seeds, pesticides, I am not in a position to afford। भाई आपको जैसे मैं एक मान लीजिए कि मैं एक कहाँ पे गया, एक मॉल में गया और मुझसे कहा गया कि भाई ये जो डिज़ाइनर जो है वर्साची की शर्ट है इसका, है ना, ये हम आपको सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। तो मैं पूछूंगा उससे कितने की दे रहे हो आप, कितने की दे रहे हो आप मुझे, तो आप कहोगे भाई हम आपको सिर्फ 2200 में दे रहे हैं, इसकी असली कीमत जो है 5000 रुपये है इस शर्ट की। अब मैं बोलूँगा भाई मेरे को तो 200 रुपये की शर्ट चाहिए, 2200 की शर्ट में क्या करूँगा, उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। तो दैट वाज ट्रू एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि जो फिर वो रिच फ़ायदा उठाते थे, पुअर के पास जितना पैसा ये लोग मांग रहे हैं सरकार सब्सिडाइज्ड रेट वो भी नहीं रहता था, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा कौन उठा लेता था, दोज रिच फार्मर्स हु आर इन अ पोजिशन टू अफोर्ड एवरीथिंग, इवन इफ द गवर्नमेंट विल नॉट गिव सब्सिडी टू देम, दे विल बी इन अ पोजिशन टू अफोर्ड एवरीथिंग। द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी उनके ट्यूबवेल के लिए रहती थी वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, सीड सब कुछ। तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था शुरू से। तो दैट्स व्हाई सम पीपल आर सेइंग दैट ओनली द रिच फार्मर्स दे आर in a way what we say benefiting out of it। ह्यूज, ठीक है ना। अब इसका एक और चीज़ है कि ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फिनेंस। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि गरीब फार्मर को हेल्प करे, लेकिन सारा फायदा रिच फार्मर उठा रहे हैं, तो भी होता है एक बर्डन हो गया ना, इट्स लाइक अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर, ठीक है। तो जनरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें कि ये जनरल हो गए, टेक्निकल हमने देख लिया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, और सरकार ने क्या किया, क्रेडिट फैसिलिटी। भाई क्रेडिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, isn't it? जो कहते हैं हम लोन वगैरह देना, उसके बगैर किसान का काम नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है कि जेस्टेशन पीरियड जो होता है, जब आपने फसल बोई और उसके बाद जब फसल खड़ी हुई, उसके बीच का पीरियड बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। तो उसको लोन, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और फसल मान लो खड़ी हुई बर्बाद हो गई बीच में, तो वो बर्बाद हो गई। इसलिए काफ़ी सुसाइड के केस आते हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़, इफ़ यू टॉक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश, ये सारी सरकार ने खड़ी करी, क्रिएट जो है कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, और कमर्श, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड जो मेन, जैसे कि हमारी एपेक्स बैंक जो कम जो बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक में एपेक्स बैंक कौन सी खिलाई जाती है, आरबीआई। तो इसी तरह से जो फार्मर्स की बैंक्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चरल बैंक, उसके एपेक्स बैंक कौन सी खिलाएगी, नाबार्ड, है ना। So NABARD was established as an apex bank to fulfill the credit needs of farmers. But again, the same. Always, whenever government is establishing or doing anything for the people or for the farmers in this particular case, there is always a problem of proper implementation, ठीक है ना। तो ये कर तो दी, लेकिन ठीक है ना। सो नाबार्ड वो स्टैब्लिश एज एन एपेक्स बैंक टू फुलफिल द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर। बट वो इतना आसान नहीं था कि फार्मर गया और बोला सर मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, तो बोला हाँ ये लो, ले लो, ये रखा हुआ है, फॉर्म भर दो और ले जाओ 2 लाख। ऐसा इतना आसानी से काम नहीं होता है। पुअर फार्मर की प्रॉब्लम है कोलेट्रल, है ना, जो उसको एक गिरवी रखना है कुछ चीज़, कि भाई आपके पास क्या है जो आप कोलेट्रल के रूप में आप रख सकते हो, जिसकी वजह से हम आपको क्या दें, लोन दे दें। अब रिच फार्मर तो रख देगा कुछ ज़मीन वगैरह के कागज़, या फिर कुछ रिच फार्मर के लिए कुछ रखने की भी शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी आमदनी अच्छी है, और उसकी गुडविल भी अच्छी है। बट पुअर फार्मर साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बोला हम तुमको लोन दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स। सो इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज फ्रॉम 15 to 50%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखो 15 to 50%, इसमें से ज़्यादातर फ़ायदा किसने उठाया, अमीर किसानों ने, उन्होंने लोन लिए थे, ठीक है।
और इनिशिएटिव फॉर ड्राई फार्मिंग, एक रिसर्च से पता चला कि भाई ड्राई फार्मिंग जिसमें मिनिमम पानी का यूज़ हो, ठीक है ना, तो ये इनिशिएटिव लिया गया। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड ट्यूबवेल मशरूम्ड इन लार्ज एरिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए सरकार ने स्टार्ट किए। ट्यूबवेल्स मशरूम्ड इन लार्ज, जब ये ट्यूबवेल की बात आ रही तो सारा जो पिछड़े जो राज्य थे वो पिछड़े ही रहे, इतना ज़्यादा ट्यूबवेल नहीं आ पाया, ठीक है ना। और ये फैसिलिटीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो स्टार्ट भी हुए, दे स्टार्टेड आई फील ओनली इन द रिच एंड द एवरेज स्टेट, नॉट इन द वेरी बैकवर्ड स्टेट्स, ठीक है ना। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटक होता है किसी चीज़ का, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी इसको, मार्केटिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की। रेगुलर मार्केट स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, मार्केट कमिटी सेटअप टू हेल्प द फार्मर्स टू गेट प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। अब कभी कभी क्या मंडियों में मार्केट्स वर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो जो व्यापारी होते थे वो मनमानी करते थे अपनी, इनसे किसान से बहुत कम कीमत पे खरीद लेना। तो गवर्नमेंट ने क्या प्राइस भी फिक्स कर दी थी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एस्टैब्लिश टू हेल्प फार्मर्स टू बार्गेन फॉर देयर प्रोडक्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्टार्ट करी जहाँ पे वो खुद ही मेंबर होते थे फार्मर, एंड दे वर एबल टू क्लेम देयर ओन प्राइसेस। और सबसे बड़ी बात, स्टोरेज फैसिलिटीज स्टार्टेड। नहीं तो कभी कभी क्या होता था कि बम्पर हार्वेस्ट हुआ किसका, किसान का, और स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होने के कारण क्या होता था कि वो बर्बाद हो जाता, चूहे खा जाते सारी फसल। अब वो क्या सरकारी भी कोल्ड स्टोरेज हैं और प्राइवेट भी हैं जहाँ पे ये अपनी कुछ पैसा दे के अपना हार्वेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि भाई गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस higher than the market price, and if farmers are not able to sell the entire produce at increased price, government offers to buy the surplus at increased price। उसको उसकी जो कीमत है फसल की नहीं मिल पा रही बेचारे को, सब कम कीमत पे ले रहे हैं, कुछ भी रीजन दे रहे हैं, तो फिर सरकार आगे आती, गवर्नमेंट वुड इंटरवीन एंड गवर्नमेंट वुड से दैट ओके वी विल परचेज एट द इंक्रीज्ड प्राइस। जो बड़ी हुई कीमत पे फिर सरकार उससे ले लेती है। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे कम कीमत पे किसानों से कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और उनसे जो फसल नहीं खरीदेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट की डिमांड कम हो जाती है और वो फसल उस पर नहीं बिक सकती, तो वो जो कहते हैं ना, if the farmers are not able to sell the entire production at increased price, then government buys the surplus at increased प्राइस। गवर्नमेंट आती है जब व्यापारियों से पैसा नहीं मिलता, उनको ये बिक नहीं पाता है बड़ी कीमत पे, तो फिर ये खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट कीप द सरप्लस इन स्टॉक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी रूल। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इंडस्ट्री वाला पार्ट, सॉरी एग्रीकल्चर वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और अगर क्वेश्चन आंसर्स में कोई आपको दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर पूछिए, कल हम इंडस्ट्री वाला स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।